everyone. Chapter 2 Source and Evaluation of Risk. We have already covered part 1 and part 2, and today we will cover part 3, and then our chapter will be finished. In part 1 and part 2, we have already covered the identification and sources of risk, quantification of risk, and various methodologies. And in part 3, we will cover impact of business risk, identify and assess the impact upon various stakeholders, and role of risk manager and risk committee. In identification and sources of risk and quantification of risk in various methodologies, we discuss the qualitative risk assessment, the quantitative risk assessment, the tools and techniques for risk quantification, risk identification assessment procedures, sources for identification of risk, etc. And today we are going to cover the impact of the business risk. Whatever the impact areas are and the nature of impact, then we will discuss the business impact analysis similar to risk impact analysis, and then analyzing the level of risk, evaluating the same risk evaluation, then identifying and assessing the impact upon the stakeholders. Stakeholders may be internal and external. Then role of risk manager and risk committee in identifying risk. So let's start with impact of business risk. Impact areas and nature of impact have been provided. For example, यहाँ पे and और उसके सिवा other impact areas can also be there. Then impact areas defined here are strategy and business objectives, financial, customer, employee, supplier, compliance, reputation or brand equity. ये आप खुद read कर सकते हो nature of impact also because we have already studied it a number of times. The impact of risk is all pervasive क्योंकि business के हर एक point पे there is some risk and it will affect the whole business model. And organizations are rarely able to document full and complete details because हर चीज में इतना रिस्क है इतनी माइन्यूट डिटेल्स है कि कुछ ना कुछ छूट ही जाता है वहां पे. And it also gets affected by severity or magnitude of the risk event. For example, so if a high magnitude earthquake comes, then its impact is catastrophic. But if it is a low magnitude earthquake, then its impact is minimal. So along with the same impact area, nature of impact, the severity or magnitude of the risk event also needs to be taken care of. Then comes the next point that we are going to discuss is classification of risk on the basis of the impacts, which we have already studied in chapter 1. Similarly, there is also given the classification that it is same if you will check now that the impacts are how classified, that it can be severe, it can be major, it can be moderate, minor or insignificant. Then business impact analysis. Similar to what we have done in risk impact analysis, there is business impact analysis, analyzing the impact on the business of the risks. So to understand and document the same, this procedures defined below needs to be taken care of. First, daily activity, understand and document the daily activities conducted in each area of business. बिजनेस के हर एरिया में जो भी डेली एक्टिविटीज हो रही है उनको समझो एंड डॉक्यूमेंट करो बिकॉज वन जब तक आप उसका फ्लो नहीं समझोगे यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड द लूप होल्स एंड लूप होल्स नहीं पता चलेंगे तब तक यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड द रिस्क. Then second, understand and document long-term or ongoing activities जो कि perform हो रही है in the business. Long-term activities क्या क्या हैं उसकी? What are the ongoing activities? What are the short-term policies? हर चीज. Then potential losses. अगर ये business risk को, business activity को, जिस दिन किसी दिन ये business activity fail हो गई, तो इसका loss कितना होगा? Then outage time, meaning how long could each business activity be unavailable? तो कितने टाइम तक अगर ये बिजनेस एक्टिविटी अनअवेलेबल है, जैसे अपन ने पोटेंशियल लॉस पढ़ा ना कि अगर ये अनअवेलेबल हुई तो कितना लॉस होगा आपको. सिमिलरली आउटेज टाइम, कितने टाइम तक ये अनअवेलेबल रही तो भी बिजनेस रन होता रहेगा इवन इफ वी सफर लॉसेस. डॉक्यूमेंट whether the business activities are dependent on any outside services or products. तो अगर outside services और products पे dependent होगा तो फेलियर अगर आपका हुआ to get that outside product or services तो आपकी business activity भी fail हो सकती है. So you need to understand that also. Then understand and documents activities that are important to the business on a scale of 1 to 5, 1 being the most important and 5 being the least important. Where would each activity fall in relation to the rest of the business? So you analyze the whole business and impacts of its various activities on the business so that you get to know कि अगर कोई चीज फेल हुई, अगर कोई एक्टिविटी फेल हुई, अगर कोई कस्टमर फेल हुआ तो what will be the impact on the business. Then coming फॉरवर्ड बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस क्या क्या आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसको क्यों कर रहे हैं अपन. शुड आइडेंटिफाई द ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स जो कि हो रहे रिजल्टिंग फ्रॉम द डिसरप्शन ऑफ
बिजनेस फंक्शंस एंड प्रोसेसेस, फंक्शन फेल हो गया, प्रोसेस फेल हो गया, तो उसकी वजह से बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होगा, इम्पैक्ट क्या क्या चीजों का इम्पैक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल लॉस ऑफ लाइफ, अगर किसी का डेथ हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपका जो सीईओ है उसी का डेथ हो गया, तो व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस, इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। देन इफ यू लूज सेल्स, if the sales is delayed, if the expenses are increased, अगर कोई रेगुलेटरी फाइन इम्पोज हुई, तो रेगुलेटरी फाइन इम्पोज हुई एंड इफ यू आर डूइंग बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस, इसका मतलब सिर्फ ये एनालाइज नहीं होता कि हाउ मच फाइनेंशियल लॉस वी हैव incurred, इट आल्सो इंक्लूड्स हाउ मच रेप्यूटेशनल लॉस, हाउ मच फ्यूचर में सेल्स कितनी कम हो जाएगी, कितना आपके ऊपर जो एनवायरमेंट वालों का क्लियरेंस का आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, उनका आई मतलब उनकी आईज में आप रहोगे बिकॉज आपका पहले भी एक बार फेलियर हो चुका है। Then contractual penalties or loss of contractual bonuses, customer dissatisfaction, delay of new business plans, etc. Then going forward, analyzing the level of risk. How level of risk is analyzed? By multiplying consequence into likelihood. Consequence इसका मतलब what will be the effect? जितना भी effect होगा उसका कितना effect होगा, severe होगा, high होगा, moderate होगा, low होगा, तो कितना likelihood है कि कितना frequently होगा, very likely, likely, unlikely, very unlikely. Then on the same basis evaluating risk, consequence into likelihood जब करेंगे तो अपने पास जो भी risk rating आएगा, according to that we need to evaluate the risk. Once the level of risk is completed, we then need to create a rating and evaluate the risk. So अगर आपका 12 to 16 आया तो वो बहुत सीवियर है, उसको immediate corrective action चाहिए। अगर हाई आया needs corrective action within 1 week, within 1 month and does not correctly require corrective action. ये हर बिजनेस का अपना अपना टाइम पीरियड डिफाइन कर सकता है बिजनेस अकॉर्डिंग टू द बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस की एक एक्टिविटी के फेल होने पे आपके बिजनेस को कितना जल्दी इम्पैक्ट आएगा, अकॉर्डिंग टू दैट दिस टाइमलाइंस कैन बी रीडिफाइंड। Then identifying and assessing the impact upon the stakeholders involved in business risk. Stakeholders can be of two types, internal and external. Internal में employees है, managers है, management है अपना, shareholders है, etc. And external में consumers है, suppliers है, regulators है, government है, and many more stakeholders are there, which I have defined are the basic ones. So we need to identify and assess the impact of the businesses on all the stakeholders, क्योंकि हर एक का नीड अलग है, and according to that उनके लिए रिस्क भी अलग है, उनके लिए इम्पैक्ट भी अलग है। फॉर एग्जाम्पल शेयर वांट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयज वांट गुड सैलरी, सेफ्टी ऑफ द जॉब्स एक्सेट्रा। एक्सटर्नल के केस में कंज्यूमर्स को अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, रेगुलेटर्स को चाहिए कि आप रेगुलेशंस फॉलो करो, टाइम टू टाइम टैक्सेस पे करो, सप्लायर्स को चाहिए कि आप प्रोडक्ट्स उनसे परचेज करते रहो एज वेल एज पेमेंट आप टाइम पे करो। तो अकॉर्डिंग टू दैट हर एक का नीड अलग है, सो द risk will also be different and risk different होगा तो उसका impact भी अलग अलग होगा, so we need to identify and assess the same. Then going forward, his role of risk manager and risk committee has been defined in the same. As you have already read in Companies Act 2013 also there has come concept of various committees, and SEBI has specifically provided for risk committee for the listed entities. कुछ टॉप 500 कंपनीज के लिए ही है अभी तक, but it will soon be applicable for others also. So, role of risk manager. अगर अपन शॉर्ट में समझना चाहें कि what can be the role of risk manager, तो रिस्क मैनेजर का रोल स्टार्टिंग से एंड तक पूरा है। पूरा है मतलब फर्स्ट रिस्क मैनेजर को डिफाइन करनी पड़ेगी कि दीज आर, फर्स्ट तो उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि बिजनेस में क्या रिस्क हो सकता है, आइडेंटिफाई करें, एनालाइज करो, उसके बेसिस पे रिस्क पॉलिसीज बनाओ, उसके बेसिस पे देखो कि रिस्क को कंट्रोल हो रहा है या नहीं, रिस्क कंट्रोलिंग करो एंड द होल प्रोसेस गोज ऑन। जैसे सर्कल होता है ना विच नेवर फिनिशेस, सिमिलरली रोल ऑफ रिस्क मैनेजर ऑल्सो गोज ऑन। तो बहुत सारे टास्क होते हैं बट आई हैव कवर्ड द मेजर वन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मैनेज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स। रिस्क मैनेजर है तो हर रिस्क फंक्शन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स है विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय रिस्क मैनेजर। सेकेंड, मोस्ट सूटेड रिस्क आइडेंटिफिकेशन टेक्निक एंड अप्रोच सिलेक्ट करो, बिकॉज फर्स्ट जो प्रोसीजर रिस्क मैनेजर को शुरू करना पड़ेगा विल बी रिस्क आइडेंटिफिकेशन। देन मैनेज द प्रोसेस फॉर डेवलपिंग रिस्क पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, तो प्रोसेस जो भी है आपका उसको मैनेज करो, बिकॉज रिस्क पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को भी ऐसा नहीं है कि वन टाइम एक्टिविटी आपने डिफाइन कर दी है खत्म काम। यू विल डिफाइन रिस्क पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, देन यू विल चेक कि रिस्क कितना कंट्रोल हुआ है, ऑन द बेसिस फिर से रिस्क आइडेंटिफिकेशन होगा, उसका एनालिसिस होगा, एंड यू विल नीड टू अपडेट द रिस्क पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स अगेन, और उसको समझाना टू कन्वे। आपने रिस्क पॉलिसी एंड प्रोसीजर बहुत अच्छे बनाए
but you fail to convey the same to the business, to the persons who are actually dealing with the risk, तो फिर कोई रिस्क पॉलिसी एंड प्रोसीजर का फायदा नहीं रहेगा। उसके बाद उसको मॉनिटर करता रहना कि उसके रिस्क इश्यूज जितने भी हैं, मेजर हैं, क्रिटिकल है, माइनर है, उनको मॉनिटर करता रहना उन इश्यूज को। मैनेज द प्रोसेसेस फॉर एलिवेटिंग कंट्रोल रिस्क, कौन से लेवल पे ये कंट्रोल रिस्क मैनेज होगा, कौन से लेवल एड्रेस करेगा, उसको मैनेज करना, उसका ध्यान रखना। एंड मैनेजमेंट ऑफ रिस्क रिपोर्टिंग, टाइम पे रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज अगर जो भी टाइम पीरियड था आपने जो डिसाइड किया था उससे आगे निकल गया तो फिर वो रिस्क को भले आप रिपोर्ट करो कोई फायदा नहीं बचता उसका। जनरेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट्स, compliance and risk assessments, etc. So overall role of risk manager is in every risk situation, starting from risk identification, analysis, then developing risk policies and procedures, management को report करना, risk controlling, then start फिर से वही circle फिर start हो जाता है। Then comes the role and responsibility of risk management committee. So risk managers together forms a risk management committee. So you can understand the risk management committee का ये जो roles जो risk manager के हैं वो तो है ही, these are some additional. So roles, five roles and five responsibilities जो मेरे according are very important. I have categorized them here. आपको full पढ़ना है तो you can refer the book and एक एक point आप read कर सकते हो and it's good. It's good for knowledge. Then role of risk management committee. Assess करना कंपनी का risk profile क्या है, risk appetite क्या है, how much risk appetite, इतना अपन लेने को ready है इतना risk, because we all know risk and reward एक ही coin के दो aspects, तो अपन जितना risk ले पाएंगे उतना ही reward अपन expect कर सकते हैं। According to that, how much risk we are ready to take is our risk appetite. Then second, recommend to the board an adoption of risk assessment and rating procedures. एक डिफाइंड पॉलिसी चाहिए, एक डिफाइंड फ्रेमवर्क चाहिए, सो दैट हर पॉइंट पे मतलब वी कैन एनालाइज द रिस्क। इतने रिस्क होते हैं कि अगर हम सोचेंगे कि वी विल एक आएगा फिर अपन उससे डील करेंगे, दूसरा आएगा फिर अपन उससे डील करेंगे, इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। सो अकॉर्डिंगली आपको एक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बनाना है, एक रेटिंग प्रोसीजर बनाना है और वो बोर्ड को रिकमेंड करना है क्योंकि एट द एंड अप्रूवल बोर्ड का होगा। आर्टिकुलेट करो कंपनी की क्या पॉलिसी है और उसके बाद ये सब तीन जो थे वो प्लानिंग कंसेप्ट थे, बाकी नीचे दो जो है दे आर कंट्रोलिंग। हैव स्पेशल इन्वेस्टिगेशन इनटू एरिया ऑफ कॉर्पोरेट रिस्क एंड ब्रेक डाउन। तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जहाँ पे भी रिस्क अराइज होता है इवन इफ देयर आर पॉलिसीज, और अगर पॉलिसीज नहीं भी हैं तो एरियाज जहाँ पे आपने सोचा भी नहीं था कि देयर कैन बी रिस्क विच वर नॉट रिस्क इम्पैक्टेड, देन ऑल्सो देयर रिस्क अराइजेस, सो यू कैन कैरी आउट अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। And then review management का responses to the company auditors recommendations. Internal audit हुई आपकी, ये risk identify हुए, इस पर management के क्या responses थे, so accordingly that will help in deriving your risk strategy. Then what are the responsibility? Similar to role, अगर आपको पता है कि आपका रोल आपने असेस कर लिया कि कितना रिस्क एपेटाइट है तो उसको डिफाइन कर दो। अगर आपको पता है कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रोल्स है, तो फुलफिल कर लो, फुलफिल इट स्टैट्यूटरी, फिडुशियरी एंड रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंश्योर करो कि रिस्क मैनेजमेंट कल्चर पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हो, क्योंकि अगर एक पार्ट को आपने बचा भी लिया रिस्क से बट सेकेंड पार्ट इज इफेक्टेड है तो क्योंकि रिस्क इस परवेसिव तो वो पार्ट दूसरे पार्ट को इफेक्ट कर ही देगा। तो इंश्योर करो कि रिस्क मैनेजमेंट कल्चर परवेसिव हो। रिव्यू करो इश्यूज जो भी रेज किए हैं इंटरनल ऑडिटर ने। बोर्ड शैल रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमिटी एनुअली, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट कमिटी अपने आप में रिस्क नहीं बन जाना चाहिए, इट शुड बी थॉरोली रिव्यूड बाय द बोर्ड, बिकॉज हर हर लेवल पे यू नीड चेक्स, अदरवाइज इट कैन फेल, और इसमें प्रोबेबिलिटी इसकी प्रोबेबिलिटी वेरी हाई होती है। अगर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी पूरे बिजनेस का रिस्क एनालाइज करती है तो उसको रिव्यू करने के लिए बोर्ड को उसका परफॉर्मेंस रिव्यू करते रहना चाहिए एटलीस्ट एनुअली। देन देयर इज IBM केस स्टडी, उसने अपने रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन को कैसे डेवलप किया है। तो उन्होंने जो अपना रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन किया है इज नॉट लाइक कि अलग से एक रिस्क कमिटी बना दिया सिर्फ या एक रिस्क डिपार्टमेंट बना दिया, उन्होंने उसे अपने पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट में इम्बाइब किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर उनका कोई एक टीम है दैट इज फॉर एग्जाम्पल सेल्स टीम, तो उसमें एक पर्सन होगा जो कि रिस्क मैनेजर होगा जो कि उस सेल्स टीम का रिस्क मैनेज कर रहा होगा। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ डिफरेंट अलग से बिल्कुल रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, उन्होंने उसी अपनी अलग अलग टीम्स में एक एक रिस्क मैनेजर अपॉइंट किया है एंड ये बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है उनके लिए एंड दिस कैन बी फॉलोड बाय द बिजनेसेस आल्सो।
देन लास्ट, प्रिंसिपल्स फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, जो कि OECD ने रिकमेंड किए हैं। दिस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसने क्या कहा है कि रिस्क का एम क्या है, कि रिस्क को समझो। तुम रिस्क मैनेजर का एम क्या है, रिस्क को समझो, मैनेज करो, और जब अप्रोप्रिएट हो तो कम्युनिकेट करो टू द अप्रोप्रिएट लेवल्स, जो कि उस रिस्क को डील करके उस रिस्क को हटा सकता है, मिटिगेट कर सकता है। सेकेंड, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, रिस्क मैनेजमेंट का जो भी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है, रिक्वायर्स एन एंटरप्राइज वाइड अप्रोच रेदर देन ट्रीटिंग ईच बिजनेस यूनिट इंडिविजुअली। पूरे बिजनेस को एक मानो एंड अकॉर्डिंग टू दैट फाइंड सॉल्यूशंस, एज इन केस ऑफ IBM जैसे उसने किया कि अलग अलग एक रिस्क डिपार्टमेंट अलग बना दो एंड देन वो पूरे बिजनेस को स्टडी करे। इसकी जगह बिजनेस के हर पार्ट में, हर टीम में एक एक रिस्क मैनेजर अपॉइंट कर दो ताकि वो अपनी टीम का एनालाइज कर पाए, एंड देन एक हेड बना दो जो कि उन सबको कोऑर्डिनेट करे। Then next, the board should also review and provide guidance about the alignment of corporate strategy with risk appetite. मतलब बोर्ड का काम खत्म नहीं हो जाता कि आपने रिस्क मैनेजर अपॉइंट कर दिया, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी अपॉइंट कर दी। आपका काम है, अब आपका काम चेंज हो जाता है। पहले था कि आप रिस्क खुद आइडेंटिफाई करो, नाउ योर वर्क इज आइडेंटिफाई द रिस्क, दैट कि रिस्क कमिटी जो है वो ढंग से काम कर रही है, वो परफॉर्म ढंग से कर रही है। Then the process of risk management and the results of risk assessment should be appropriately disclosed. तो पूरा डिस्क्लोज हो जाए, कभी कोई रिस्क आए, एवरीथिंग नीड्स टू बी डॉक्यूमेंटेड। रिस्क आया, उसका क्या सॉल्यूशन किया, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, ताकि इन फ्यूचर अगर वो रिस्क फिर से इम्पैक्ट करे आपके बिजनेस को, तो यू हैव अ वेल लेड आउट स्ट्रेटेजी विद एक्सपीरियंस। सो हर चीज को डॉक्यूमेंट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो विद दिस वी हैव completed our chapter 2. So with this, we have completed our chapter 2, source and evaluation of risk. Similar to chapter 1, this was also very important. आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी, इंक्लूडिंग सोर्सेज ऑफ रिस्क, द वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, 15 16 टेक्निक्स पढ़ी है। एंड एटलीस्ट आपको ना उनका नाम और उनका क्रक्स की व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ द सेम आपको दिमाग होना चाहिए, सो दैट जब क्वेश्चन रीड करें तो इट कैन स्ट्राइक कि हाँ भाई ये वाली टेक्निक की बात हो रही है, यहाँ पे जैसे फॉल्ट ट्री एनालिसिस की बात हो रही है, बोटा एनालिसिस की बात हो रही है। सो आपको वो स्ट्राइक होना चाहिए। एंड उसके बाद तो आप डायरेक्टली चैप्टर बुक खोल के, ओपन बुक है, सो यू कैन राइट डाउन। सो इतना बेसिक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाना चाहिए। नाउ वी विल कवर चैप्टर 3, रिस्क मैनेजमेंट, इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।